Hello viewers, this is Mayor Mangfi reporting for Arunachal 365. Well, every place has its own beauty and hideous side. Today we will be talking about the Sepa town. And let me show you how beautiful and clean the whole Sepa town is. As you can see behind me, there is varieties of the plastic. You can see the dirty, the garbages is been thrown here at just near to the very precious assets of the Sepa town, the only general ground, and just near to the main road. So now viewers, you can see how the Sepa town really needs to upgrade its in terms of the beautification, cleanliness and urban planning, etc. रोड में ही पूरा अपना कचरा को लेके आता तो है। उसको अभी एडमिनिस्ट्रेशन अभी ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर देता है कि टोटली बैन करो, तब भी नहीं हो पाता है। No doubt, East Kaming is one of the beautiful districts in Arunachal Pradesh, but the condition of the headquarter of this district is in miserable condition. Even the main market area of this Sepa town is completely like in a very pathetic condition. We can say that. And if we go toward this side, this is the barricade. You can see what is the condition of this barricade is, and towards my left side, this is the very famous Diwana Hotel of the Sepa town, of this particularly this main market area. And even you can see this area, how dirty, how the water is being accumulated here, and the side of me, the road is completely is filthy here. You can say that. So this is the current situation, current scenario of this Sepa town. Well viewers, right now I'm standing here at the very heart of the Sepa town, the only general ground, the very precious assets of the Sepa town, which is also again in a very piteous condition. Now the question here is that no doubt the administrative, the department and the Bidayak are doing their part of duty. But what about the public? The public of this Sepa town, the statesperson, civic sense to act together and ponder upon and boost each other for the betterment of their own space and this whole Sepa town. How long are we going to just depend and nag on the government all the time? As a responsible citizen, isn't it our duty to keep our environment clean? Well, right now I'm standing here with the GS of the Kaming River Rejuvenation Club, which is one of the very famous club in Sepa town, who works for the betterment of the Sepa town and for the cleanliness of the Sepa town. सबसे पहले आपको हमारा चैनल अरुणाचल 365 में स्वागत है। हमने काफ़ी सुना है कमिंग रिवर रेजुविनेशन क्लब का जो जितना भी जो काम करता है, आप लोग क्लीनलीनेस को आप लोग प्रायोरिटी देते हैं, काफ़ी सुना है। इतने काम करने के बाद भी अभी सेपा टाउन में इतना गंदगी है। सबसे पहले आपका 365 न्यूज़ अरुणाचल 365 ना, उसको धन्यवाद जो आप सेपा में आके ये सब चीज़ में कवर करने के लिए। और स्पेशली हम एक कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब का जनरल सेक्रेटरी है हिते ज्ञान माई सेल्फ, और यहाँ में जितना ये मेरा मेंबर्स है। और उसके बाद ये कचरा का बात बोलने से तो बहुत माने दिन से बहुत साल से हम लोग इस चीज़ में लगा हुआ है। और स्पेशली यहाँ डिपार्टमेंट नाला से भी हम लोग बहुत बातचीत हुआ, और डिपार्टमेंट नाला से भी हम लोग का बहुत माने ये में है, आपका क्या बोलता है कीप इन टच में है। उसका डिपार्टमेंट का आपका हो गया, दूधा का JEA हो गया, हम लोग का साथ में हमेशा हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ ऐसे बढ़ गया कि आपका सोल्यूशन थोड़ा प्रॉब्लम है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपका जो है जो MRF बना है ना, वो कंप्लेंट नहीं होने कारण से बहुत सा ऐसे कचरा है जो हम लोग को देखने मिलता है। तो अभी मैं क्या बोलूँ उसके लिए, तो बहुत कोशिश कर रहा है हम लोग क्लब वाला भी उसके लिए। वैसे अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो फैसिलिटीज़ होता है, हमें ये कहा गया है कि वो अभी बन रहा है बोल के। अगर नहीं भी बनो या बन भी रहा है तो लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सेपा टाउन का अपना ऐसे यहाँ का जो रहने वाले हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनका भी अपना एक ड्यूटी बनता है कि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखो, क्योंकि दिन बाई दिन हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेपा टाउन काफ़ी गंदगी में डूब रही है। हम तो बार बार यही इस जगह में हम ये होने से आपका
2 टाइम्स हो गया इंटरव्यू आप लोग का साथ में, ये अरुणाचल आई का साथ में, आज आपका साथ में, और सोशल सर्विस आपका क्लिनिक्स ड्राइव हम लोग यही जगह ये बैंक वाला को भी हम लोग ने किया है। 27 जुलाई 2022 में एक किया था, 30 जुलाई 2022 में इसमें, क्योंकि इसमें मेरा डायरी में भी अभी भी है। तो ये सब करने का बावजूद भी हम सबको, जैसे हम लोग दिन में किया शाम को ही यहाँ फेंक के चला गया कोई जो, तो अभी घर घर तक तो हम जा के नहीं बोल सकता है। लेकिन आपका ये चैनल का माध्यम से हम यही सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम सब एक ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन है, हम सब कुछ अपना गंदगी को कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए हम लोग का ऊपर में। वो हम किसी दूसरा को हम ये नहीं कर सकता है कि आप मत फेंको हम ये करेगा, हम आप फेंको हम साफ़ करेगा, ये हम नहीं कर सकता। तो आप एक्चुअली आपका MRF नहीं बनने के कारण से हम लोग अपना आप में माने ये होना चाहिए कि हम लोग को मैनेज करना है, हम लोग किस तरफ से किस तरीक़ा से उसको हम लोग ये करना चाहिए ना, यूज़ करना चाहिए। तो प्लास्टिक का बात बोलने से, ये कचरा का बात बोलने से, उसमें आपका 2 तरीक़ा का होता है, एक सेग्रीगेट होता है, एक नॉन सेग्रीगेट होता है। तो उसको हम लोग सेग्रीगेट वाला को हम लोग कुछ अपना से मैनेज करना है, और नॉन सेग्रीगेट जो प्लास्टिक चीज़ है उसको हम लोग टोटली बैन करो भी हम नहीं बोलेगा। लेकिन और गवर्नमेंट से जितना ऑर्डर देता है कि टोटली बैन करो तब भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग का लाइफ में वो जुड़ा हुआ है, उसका बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते इस तरह से। तो अभी हम पब्लिक वाला से यही अपील करेगा कि जैसे हम तो मैक्सिमम जगह जैसे टाउन अंदर में देखने से हमारा, हम नहीं बोल रहे कि ये जो आपका ये बैंक साइड वाला जो गंदा करता है और उसका बस स्टेशन साइड वाला गंदा करता है, एक जगह है कि देखने से ताइवान आप कुची ब्रिज का इस पहाड़ से लेकर ना पचम ब्रिज तक अंदर में रोड साइड में हमको जितना भी देखने से हम गंदा दिखाई नहीं देता है। पता नहीं वो लोग कैसे मैनेज करता हुआ वो हम पता नहीं। लेकिन जब इस साइड नीचे आने से हमको मेन पॉइंट जो ये SBI है, और सेकंड पॉइंट जो आपका ये ट्रांसपोर्टेशन कॉलोनी दोनीपोलो कॉलोनी बोलता है क्या साइड, और उस साइड में बस स्टेशन साइड में, और एक है आपका ना दोनी कॉलोनी वो आपका उसका न्योकम लपंग के सामने में, और एक DC ऑफिस DC का जो आपका बंगलो का सामने में। ये 4-5 पॉइंट है ऐसे बहुत खराब मतलब देखने देता है कि सपा का जो ब्यूटिफिकेशन है हम लोग का रोड में ही पूरा अपना कचरा को लेके आता है। लेकिन ये ऊपर साइड वाला कैसे मैनेज करता है वो हम पता नहीं। लेकिन हम तो ये अपील करूँगा कि जितना सकता है आप अपना घर में मैनेज कीजिए, रोड पर तक लेके मत आइएगा, ये मेरा अपील है सबसे। जब से देख रहा है 5-6 कम से कम 6-7 महीना हो गया, जब ये पहले एक DC था, ये क्या नाम था, अभी गोवा में ट्रांसफ़र हो गया, उसमें से मैंने यहाँ में अभी पूरा कचरा में, हम तो ये मॉडर्न विलेज का हम बता रहा है, हम ये टाउन का नहीं है, लेकिन हम लोग वहाँ में सप्ताह में एक बार आता था मॉडर्न विलेज में, तो वो सप्ताह वाला भी ख़त्म हो गया। अभी हम लोग गंदा को अपना ही गाड़ी में उठा कर ले जाकर ये फेंकना पड़ता है। और यहाँ टाउन का अंदर का तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, पूरा आप देखिए बैंक के सामने में या कहीं में भी आप जाकर देखिए, या DC का कुट का बंगलो का, अरे जो DC बंगलो है ना यहाँ में, उसका आगे में भी देख सकता है, वहीं उसका गेट का आगे में पूरा गंदा पड़ा हुआ है। तो उसको अभी एडमिनिस्ट्रेशन अभी ध्यान नहीं दे रहे, तो उसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मेरा अपना तरफ से तो हम गंदा फेंक देता है ना, मैंने गाड़ी में उठाकर फेंक देता है। आपको नहीं लगता है कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऊपर में ही सिर्फ ब्लेम करते से नहीं होगा, बल्कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी अपना सराउंडिंग्स को देखना है साफ सफाई का तौर पे? जी जी, ये सवाल तो बहुत आपने अच्छा पूछा। मैंने ये एकदम हर सिटीजनशिप का तो ये रिस्पॉन्सिबल बनता है। अभी आपको हम जस्ट मेरा एग्जांपल बताइए, जैसे अभी हम कचरा को पूरा ये प्लास्टिक ये सब में ये जमा कर हम गाड़ी में ले जाकर दूर में फेंक देता है ना, लेकिन वो भी रास्ता किनारे में नहीं फेंकता। तो रास्ता किनारे ये सब में और ऑफिस का आगे में तो फेंकना ही नहीं माना। जैसे अभी हम बता रहे तो हर ये जो भी सपा में रहता है उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी, आप जो आपका घर का आगे में जितना भी गंदा होगा कुछ भी होगा उसको आप प्लीज़ अच्छा से आप ये पैक कर आपको कहाँ जहाँ सूटेबल लगेगा, माने आपको टाउन से दूर ले जाकर उसमें आप फेंकिए ना। ये तो देखकर हमको भी बहुत गंदा ये खराब लगता है ना, जो आपका ये रोड का एकदम स्पेशली जो सामने ऑफिस का सामने में है, DC का सामने में, ये तो हमको भी ख़राब लगता है। तो आपको वही हम भी मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है कम से कम प्लास्टिक में अच्छा से पैक करिए, इसके बाद में आप कहीं दूर में फेंकिए ना उसको, जहाँ में माने ये क्या बोलेंगे टाउन से थोड़ा दूर होना है, देखने में भी अच्छा लगना, वही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।